So we have learned yesterday how can we detect tampering in our hash pointer, है ना? ये सारी चीजें हमने कल देखी थी ने, और मर्कल ट्री भी देखा, हाउ डू वी मेंटेन द मर्कल ट्री इनसाइड अ ब्लॉक. ठीक है, this is the block header. As you can see, Merkle root is maintained in every block header. Next हमको क्रिप्टोग्राफी पढ़ना है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी that is actually used in the blockchain. One of the application of the public key cryptography, that is digital signature. ये actually use होता ही है just to sign the document, sign the block that it is generated or it has been verified by a particular miner. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी में आपने पढ़ा ही है. सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होता है और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होता है ना? तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? वेयर वी आर यूजिंग सेम की, like key 1, there is a one key, it is used to encrypt the message. It is used, this k1 is used to encrypt a message, and then it is used to, the same key is used there in the destination side for decryption purpose. Like if A wants to send a data, A wants to send data to B, then it first encrypt it using this key K1, and then once B received it, B uses the same key to decrypt the message M, right? तो मेन कंसेप्ट यहाँ पर है, सेम की यूज हो रहा है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, एंड हाउ टू शेयर द की सिक्योरली इज द मेन कंसर्न. क्योंकि की अगर सेम है तो की भी आपको यहीं से शेयर करना पड़ेगा इसी मीडियम का यूज करके. तो की भी जो है आपका सिक्योरली शेयर होना चाहिए. ठीक है, तो cannot address certain requirements, that is third point. It is actually talking related with the blockchain, क्योंकि ब्लॉकचेन में हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज नहीं कर सकते. तो इट डजंट, बिकॉज इट इज नॉट एड्रेसिंग दैट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट विच इज रिक्वायर्ड देयर इन द ब्लॉकचेन. So because of that, we use public key cryptography in the blockchain. So what is public key cryptography? There will be two keys, K1, say K1 and K2. K1 will be used for encryption purpose and K2 will be used for decryption purpose. अभी K1 और K2 एक दूसरे से related तो होना चाहिए. Yes. So if A wants to send any information or a message to B, so every node which is there in the network and share some information with other nodes in the network, and if they are working with the public key cryptography, in that case every node will have their private key, or every person you can say private key and its public key. B के पास भी एक प्राइवेट की होगा और पब्लिक की भी होगा. So if A wants to send data or a message to B, A first encrypt that message with the private key of B, because उसको किसको भेजना है? B को भेजना है. सॉरी, प्राइवेट बोल रही हूँ. Okay, if A wants to send B, then it will encrypt it using public key of B. Sorry, private नहीं है ना, प्राइवेट हम डिजिटल सिग्नेचर में यूज करते हैं, है ना. तो जब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बात हो रही है, दोनों के पास जब A सेंड कर रहा है B को, तो रिसीवर कौन है? इट बेस्ड ऑन दैट. ठीक, तो बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ कीज, पब्लिक की और प्राइवेट की. तो पब्लिक की इज अवेलेबल टू एवरी नोड इन द नेटवर्क, एंड प्राइवेट की जिसके पास लाइक बी का प्राइवेट की है तो ये सिर्फ बी को ही पता होगा. ठीक है, एंड दिस पब्लिक की एंड प्राइवेट की आर जनरेटेड in such a way that if you use public key to encrypt a message, you can use the same private key, same person's private key to decrypt the message. ठीक है, तो आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. तो इंक्रिप्शन करेगा अगर ए मैसेज को, क्योंकि उसको बी को भेजना है, तो उसके पास बी का पब्लिक की है, तो वो बी के पब्लिक की से, यहाँ मैं ठीक से लिख देती हूँ, पब्लिक की के बी के पब्लिक की से इंक्रिप्ट करेगा. एंड वंस इट इज सेंट थ्रू द नेटवर्क, transmitted through the network, and once it is received there at the point B, at the node B, it will be decrypted. That message will be decrypted by using the private key of B. B अपनी ही प्राइवेट की से फिर उसको डिक्रिप्ट करेगा the message, the encrypted message, है ना. encrypted message, if you can M prime, we can say it,
M prime, और M prime जो है will be decrypted with the private key of the B. ठीक है, so this is public key cryptography. So because it handles several requirements which is required there in the blockchain, इसलिए हम लोग public key cryptography ही use कर रहे हैं. So one of the main application of the public key cryptography is digital signature. This is an application of public key cryptography. So what is digital signature? As we know, signature means you are actually verifying. Physical signature में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट में अगर आपने साइन किया, so you are saying that this is signed by me means I have verified it, और आप इसको बता रहे हो. Let me write it first. कि this is my document or this is signed by me and I agree to it, right? And it is, and if you are sending that document to some other person, it is actually saying to that person कि आपने, आप बाद में डिनाई भी नहीं कर सकते, और वो उनको ये भी समझ आ रहा है कि ये इस पर्सन ने भेजा है. ठीक है, by seeing the signature, your signature. In the same way, अगर हम वो उसको नेटवर्क में कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, तो we call that digital signature. ठीक है, so it is a digital code. Digital signature is a digital code which can be included with an electronically transmitted document to verify the content of the document. ठीक है, so to verify the content of the document which is authenticated or not, the identity of the sender. It will prevent non-repudiation. Non-repudiation means sender will not be able to deny about the origin of the document. Once you send that using your digital signature, then you cannot deny. तो नॉन रेपुडिएशन को आप रिड्यूस कर सकते हो by using digital signature. That is actually required in the blockchain. Once the block is mined, it has been added into the blockchain. Whoever added it cannot deny बाद में कि वो उसको ऐड नहीं किया था. अगर उसमें कुछ भी फॉल्ट आता है, कुछ भी फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो, है ना. तो कंटेंट ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, ये आप सिग्नेचर करके आप ऑथेंटिकेट करते हो. आपकी आइडेंटिटी भी पता चलती है इफ यू आर अ सेंडर, एंड नॉन रेपुडिएशन भी प्रिवेंट होता है. ठीक है, सो दिस इज द मेन application of the public key cryptography, that is digital signature, that we will be using there in the blockchain. So what is the purpose of digital signature? Only the signing authority can sign a document. Like अगर आप बोलोगे कि एक डॉक्यूमेंट मैंने साइन कर दिया तो अब वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, नो, इट कैन नॉट बी डन. ठीक है, मैंने एक में डाला बाकी में पेस्ट कर दिया, हो गया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वॉट एवर डॉक्यूमेंट यू आर अप्लाइंग योर डिजिटल कोड, यू आर द साइनिंग अथॉरिटी. तो आप साइन करोगे बट एवरीवन कैन वेरीफाई द सिग्नेचर. ठीक है, बट उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता. सिग्नेचर इज एसोसिएटेड with the particular document. Signature of one document cannot be transferred to another document, that I just told you. ठीक है, तो सिग्नेचर हर एक डॉक्यूमेंट के साथ होगा. दैट सिग्नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड one document to another, and only the signing authority can sign a document and others can only verify that this is the signature of that particular person. So this is the purpose of digital signature. ठीक है, नेक्स्ट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को थोड़ा और डिटेल में अब देखते हैं, क्योंकि हम अगर आपको न्यूमेरिकल जैसा भी आ सकता है. ठीक है, तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी also known as asymmetrically cryptography because we are using different key for encryption and decryption. Key, a parameter that determines, what is the key? A parameter that determines the functional output of the cryptography algorithm. तो encryption में हम क्या कर रहे हैं? The key is used to convert a plain text to a ciphered text. We are doing encryption of the message M using a key to get some ciphertext. So this M prime is now known as ciphertext, and this M prime will be sent, or this ciphertext will be sent through the network to the other end, or to the recipient. Okay, this is encryption. And decryption is, we use another key to convert this ciphertext to the original plain text. This ciphertext M prime
we are using another key. It should be written as K prime or something K1 like that, because we are using different key to represent it differently. तो दूसरा की यूज करेंगे to decrypt this message so that we will get the original message M at the receiver side. So this is the main key behind public key cryptography. Okay, so what are the properties of a cryptographic key? You need to prevent it from being guessed. Yes. Generate the key truly randomly so that attacker cannot guess it. Yes. आप अगर जैसे हमने लास्ट टाइम किया कि जब हैश वैल्यू निकाल रहे थे लीडिंग जीरो रेस्ट्रिक्शंस, अगर हम जितने ज्यादा हाई करेंगे उतना ही टफ होगा अटैकर का गैस करना. तो लाइकवाइज आप ऐसे एक डिजिट या दो डिजिट का रखोगे तो बहुत इजीली ये अटैकर उसको guess कर सकता है. तो we need a key that should contain the more number of bits. As you can see here, the key should be of sufficient length. It should be randomly assigned. The key should contain sufficient entropy bit by bit. All the bits in the key should be equally random. ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका कुछ पैटर्न है कि फर्स्ट बिट ऐसा है तो थर्ड ऐसा होगा, लाइक दैट. देयर शुड नॉट बी एनी पैटर्न. एवरी बिट ऑफ that should contain sufficient entropy, or it should the overall length of the key should be sufficient large enough, है ना, क्योंकि as you increase the length it makes the key difficult to guess. So these are the three main properties that we should ensure before creating a key for the public key cryptography. Okay. अब देखो इसमें कैसे हो रहा है. टू कीज आर यूज्ड. तो एक को हम लोग कहते हैं प्राइवेट की, एक को हम लोग कहते हैं पब्लिक की. ठीक है, तो प्राइवेट की जो है जिसका भी है, लाइक इफ शी इज एलाइज और ये बॉब है, नेम दोनों का. एलाइज का अपना एक प्राइवेट की है जिससे वो इनक्रिप्ट भी कर सकती है, डिक्रिप्ट भी कर सकती है. ठीक है, पब्लिक की भी उसके पास है. पब्लिक की बोलते ही समझ में आ रहा है विच इज पब्लिक टू एवरीवन. प्राइवेट की इज प्राइवेट टू हर ओनली. ठीक है, पब्लिक की टू एवरीवन, इट इज पब्लिक टू एवरीवन. तो वो एलाइज का पब्लिक की है. अब बट जिस एलाइज को अगर बॉब को कुछ डेटा सेंड करना है तो एलाइज अपने जिसको सेंड करना है उसका पब्लिक की भी इसके पास होगा, बिकॉज अगर बॉब को सेंड करना है तो बॉब का भी अपना एक पब्लिक की है और प्राइवेट की है. तो इसका ये दोनों ही की आपस में ऐसे मैच्ड हैं कि अगर आप पब्लिक की से इनक्रिप्ट करोगे तो यू कैन यूज प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट, एंड इफ यू यूज प्राइवेट की टू encrypt a message you can use a public key to decrypt it. Vice versa is true for public key cryptography, but because private key cannot be shared to anyone in the network, we use only public key. ठीक है, तो अगर एलाइज को बॉब को मैसेज सेंड करना है तो एलाइज विल encrypt a message M using the key which is public key of Bob. This is Bob's public key. ठीक है, यूज इंक्रिप्शन कैसे कर रही है एलाइज? यूजिंग द पब्लिक की ऑफ बॉब. वो M को मैसेज M को इनक्रिप्ट करती है एंड she will get M prime. Now this M prime will be sent through the network to the Bob, and once Bob received it he needs to decrypt the message because original message was not there, and to decrypt the message he has to use his own private key, Bob's private key, to decrypt the message M dash, the ciphertext you can say, M prime you can say, decrypt, D for decrypt the message M prime using his own private key to get the original message again. ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट है. बट वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, बट इट इज रिस्की टू शेयर अ प्राइवेट की विद अदर पर्सन. ठीक है, तो जिसको आप भेज रहे हो आप उसकी पब्लिक की से अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करते हो, एंड वंस ही और शी रिसीव्ड इट वो उसको अपने प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करते हैं. सो बोथ द कीज आर रिलेटेड विथ ईच अदर. दे आर asymmetric but they are related with each other. So any of the keys can be used for encryption and decryption, but whichever is used other can be used for the another person, another work, another function. ठीक है, तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्लियर हुआ. तो मेन हम लोग इसमें आरएसए, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के. हम लोग आरएसए एल्गोरिदम को देखेंगे बिकॉज इट इज द मोस्ट पॉपुलर वन. इट इज नेम्ड ओवर राइविस्ट, शमीर,
and Edelman, inventors of the public key crypto system. So the encryption key is public and decryption key is kept secret, that is private key. तो अभी हमने पढ़ा. So anyone can encrypt the data, but only the intended receiver can decrypt it. यही समझ आ रहा है, because the private key is known to that receiver only. जिसका हम पब्लिक की यूज करके इनक्रिप्ट कर रहे हैं उसका प्राइवेट की तो सिर्फ उसी के पास है. तो ओनली द इंटेंडेड रिसीवर कैन डिक्रिप्ट द डेटा, but anyone can encrypt the data because we are using public key to encrypt the data, and public key is available to every node in the network. Okay, so for performing this RSA algorithm, there are 4 phases for that RSA algorithm, as you can see here in the diagram. You will get a plain text. First you need to generate the key. तो फर्स्ट फेज है आपका की जनरेशन, पब्लिक की और प्राइवेट की आपका की जनरेशन होना चाहिए. देन की डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स योर पब्लिक की शुड बी अवेलेबल टू ऑल अदर नोड्स इन द नेटवर्क जिससे आप डेटा शेयर करना चाहते हो. देन यू हैव टू परफॉर्म द इंक्रिप्शन एंड देन द डिक्रिप्शन. ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट will be encrypted using public key and become a ciphertext, and then ciphertext to get back the plain text we need a private key for that. Just a minute. Okay, so RSA algorithm will have 4 phases: key generation, key distribution, encryption and decryption. Okay, अब थोड़ा सा डिटेल मैथमेटिक्स में हम लोग चलेंगे. पब्लिक एंड प्राइवेट कीज इन आरएसए को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें हमको ई और डी को डिराइव करना होता है यूजिंग some positive integer. They are just a positive integer and a very large positive integer actually. ठीक है, such that modular exponentiation for integer m, it should be between 0 to m, should be between 0 to n, है ना. आई मीन 0 से ऊपर होना चाहिए, 0 से लेकर n के बीच में हो सकता है, बट इट शुड बी लेस देन n. तो e, d और n ये हमको एक इंटीजर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये लास्ट में क्या दिखा है यहाँ पर देखो, m पावर e, ये तीन ही चीज थी, टू द पावर d. ये एक्चुअली कैसे हो रहा है, m इट शुड बी इक्वल इन टू m मॉड n. ठीक है, यही जस्ट d टू द पावर e करोगे तो भी सेम m मॉड n. तो वेयर इफ इट इज रिटन लाइक दैट, तो जिसमें से e एंड n विल बी यूज्ड एज अ पब्लिक की, ये हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर बाद. e and n is used as a public key and dn is used as the private key and m is the message that needs to be encrypted. तो ये ध्यान रखना है, e, n जिसमें से ये हमने लिया है ना, e को भी लिया है, एक इंटीजर वैल्यू है, n भी एक इंटीजर वैल्यू है, एंड d एंड n भी. So these are the two public key. E and n is used as the public key and dn is used as the private key. तो ये कैसे यूज होगा इसको यहाँ पे देखिए, देखो कैसे कैलकुलेट करना है ये en और dn को. तो फॉर की जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट टू phases of the RSA algorithm, first we need to choose two distinct prime integers, that is p and q. ठीक है, ये हम अलग से अपने से ही कोई दो डिस्टिंक्ट प्राइम इंटीजर्स लेंगे. p एंड q शुड बी चूजन एट रैंडम टू इंश्योर टाइट सिक्योरिटी. ठीक है, कंप्यूट n. अब n देखो n कैसे निकल रहा है, p और q के मल्टीप्लीकेशन से. ये देखो n इज इक्वल इनटू p इनटू q, है ना. तो लेंथ ऑफ द n इज कॉल्ड द की लेंथ. जो भी n का लेंथ है दैट इज कॉल्ड द की लेंथ and n is used as the modulus. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो करने के बाद जो नंबर आएगा that will be used as a modulus. जो mod n हम लिख रहे थे ना, m mod n, this one.
ये है वो n, ठीक। देन वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग phi n, दैट इज यूलर-टोशियन फंक्शन। इसमें हम क्या करें, p माइनस वन और q माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं। ये एल्गोरिदम है RSA एल्गोरिदम, ठीक है। तो हमने phi n भी कैलकुलेट कर लिया, phi n आ गया हमारे पास, n भी आ गया हमारे पास। नाउ वी नीड टू चूज एन इंटीजर e such that e should be in between, it should be greater than 1 and it should be less than this phi n, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और phi n से छोटा होना चाहिए, है ना। तो दोनों देखो इसमें क्या लिखा है, e and phi n, जो हमने e लिया है, जो भी हमने e लिया है, कैसे चूज करना है आपको वो e, इट शुड बी लेस देन phi n, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। ये देखो, ये जो हमने अभी बात की, इट शुड बी लेस देन phi n, बट ये भी ध्यान रखना है कि दोनों को प्राइम हो, मतलब इनके बीच में कोई फैक्टर कॉमन ना हो, ठीक है। इसलिए देखो GCD निकाला है दोनों का, तो कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। GCD ऑफ E and phi n should be equivalent to 1. There is no other factor, only 1. So we need to find an E such that जो भी phi n हमारा आया, p minus 1 और q minus 1 का मल्टीप्लीकेशन करने के, उनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, ओनली 1। तो GCD जिसका 1 आए, ठीक। नाउ वी नीड टू, E तो हो गया, N भी हो गया, हम N भी निकाल लिए, E भी हमने चूज कर लिया। नाउ कौन सा था, E और D। अब D हमको चूज करना है, तो D कैसे करना है, D का देखो ये फॉर्मूला दिया है, वी नीड टू डिटरमाइन D which is equivalent to E inverse mod phi n. D is the modular multiplicative inverse of E modular mod phi n. तो अगर मैं इसको ही इस तरीके से लिखूं, ये देखो D, अगर D को हम 1 by E mod phi n करते हैं तो क्या होगा, ये ऐसा हम लिख सकते हैं, D into E 1 mod phi n। तो phi n की जो भी वैल्यू है, दैट शुड बी, जो भी डेटा यहाँ पर हो, है ना, D into E जो भी हो, दैट शुड बी डिवाइडेड, व्हेन मॉड्यूलस निकाले तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो E की वैल्यू हमको पता है, तो उससे हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं विथ रैंडम, वी आर रैंडमली चूजिंग इट, ठीक है। फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऐसा कब होगा कि हम इस वैल्यू के साथ D का वैल्यू ऐसा क्या रखें कि जब उसको E से मल्टीप्लाई करें तो जो रिमाइंडर है वो 1 बचे, ठीक है। तो ये हमको निकालना पड़ता है। तो दिस इज RSA की जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वंस वी गेट दैट, तो E और N विल बी यूज्ड एज अ पब्लिक की एंड D and N विल बी यूज्ड एज प्राइवेट की, एज यू लर्न हियर, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं एज एन एग्जाम्पल। ये ऊपर वही चीज लिखी हुई है, देखो ये साइफर टेक्स्ट है, इंक्रिप्शन विद पब्लिक की E and if E, N is used as a public key, तो हम उससे क्या निकालेंगे, साइफर टेक्स्ट C, ठीक। तो निकालेंगे कैसे, m टू द पावर E, ये फॉर्मूला है, m टू द पावर E करेंगे एंड मॉड n रखेंगे, ठीक। एंड प्राइवेट की D, N जो है उससे कैसे करेंगे, जो भी हमारा साइफर टेक्स्ट है उस साइफर टेक्स्ट में D पावर करेंगे एंड मॉड n करेंगे। तो ये C, एक्चुअली C क्या है, m टू द पावर E है, तो यही हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, ये देखो यही चीज है, सेम, ठीक। तो यही चीज यहाँ पर है। तो लेट्स एज्यूम दो प्राइम नंबर लिए हमने, 17 और 11, दो प्राइम नंबर लिए, P विच इज इक्वलेंट टू 17 एंड Q 11, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। वी कैलकुलेट n कैसे कैलकुलेट करने बोला इसमें, देखो कंप्यूट n इज इक्वल टू P इंटू Q। तो n इज इक्वल टू P इंटू Q करने से क्या आ रहा है, जैसे हमको यहाँ पे आंसर दिख रहा है 187 आ रहा है। अगर मैं 17 इंटू 11 करती हूँ तो मुझे 187 मिल रहा है। तो अब मेरा मॉड यही है, मॉड इसी से करना है, ठीक है। कैलकुलेट फाई एन, अब फाई एन कैसे निकालेंगे, P माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई Q माइनस 1। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, लाइक दैट, और अगर ये प्राइवेट की है तो करस्पॉन्डिंग पब्लिक की क्या होगा, अगर ये पब्लिक की है तो करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। P माइनस 1 Q माइनस 1 करने से क्या हो गया, ये हो गया 16 और ये हो गया Q है 11, ये हो गया 10, तो हो गया हमारा 160। तो फाई एन क्या हो गया 160, दैट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द D।
नाउ वी नीड टू सेलेक्ट ई. देखो, once we compute phi n, next है choose an integer e such that it should be between 1 to 160. मेरा phi n क्या आया 160, तो I need to choose an e which should be greater than 1 but less than 160. ठीक है, तो इसमें ये जो आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है उसमें उसने लेट e इज इक्वल टू 7, उसने e को 7 लिया है. e को 7 लेने से वी नीड टू डिटरमाइन d. d को कैसे डिटरमाइन करेंगे? d इंटू ई, हमने बोला 1 मॉड फाई n, मतलब फाई n से हम उस इसको डिवाइड करें तो 1 हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए. तो e तो हमने एज्यूम किया है 7. d हम ऐसा क्या रखें? तो d बोलता है अगर आप 23 रखोगे, अगर आप d की वैल्यू 23 रखोगे तो ये हो जाता है 161. और 161 को अगर आप मॉड 160 से मॉड 160 करते हो तो 1 आपके पास रिमाइंडर बचता है. तो मेरा ये वाला जो लाइन है ये ट्रू हो जाएगा. सो फॉर दैट वी कैन यूज d, द वैल्यू ऑफ d एज 23. तो वी गेट अ वैल्यू, एक ऐसा d का वैल्यू एक बार में, क्योंकि सारा कैलकुलेशन हुआ रखा है, बट आप जब करने जाओगे तो यू नीड टू डू सम प्लस माइनस. जीसीडी निकालने बोला तो जस्ट गो विद द जीसीडी एंड देन सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट. ठीक है, तो ये अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पब्लिक की का कॉम्बिनेशन क्या हुआ. अगर मुझे इनक्रिप्ट करना है, ये अगर मुझे इनक्रिप्ट करना है तो e कॉमा एन करना है, तो e है मेरा 7 और n है 187. और अगर मुझे डिक्रिप्ट करना है, दैट इज द प्राइवेट की विल बी यूज्ड एज 23 एंड 187. तो कोई एक देखिए आपको दूसरा पूछ सकता है या दोनों ही पूछ सकता है बाय गिविंग द प्राइम नंबर्स p एंड q. ठीक, तो या फिर आपको कुछ लेकर सॉल्व करना पड़ेगा. अगर प्राइवेट की है तो पब्लिक की क्या होगा, व्हाट शुड बी द p एंड q एंड देन यू नीड टू डिराइव इट. तो इस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं RSA इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में. ठीक, अब जब आप देखो अगर हमको इनक्रिप्ट करना है, सेम इसी को लेके करेंगे जो हमने अभी निकाला. अगर इनक्रिप्ट करना है, इंक्रिप्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट m, अगर 88 उसका इंटीजर इक्विवेलेंट है, m मे बी स्ट्रिंग मैसेज, द इंटीजर इक्विवेलेंट ऑफ दैट m इज 88. तो उसको अगर मेरे को निकालना, तो ये देखो साइफर टेक्स्ट, यही फॉर्मूला में मैंने लगा दिया. क्या लिखा है? c साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू m टू द पावर e स्मॉल e, m ना स्मॉल m. ये जो 88 है एक्चुअली m डिनोट्स द ओरिजिनल मैसेज, स्मॉल m डिनोट्स द इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल मैसेज. तो हियर 88, इसलिए m टू द पावर e मॉड n. यही था क्या? ये देखो यहीं पर तो लिखा है, हाँ ये m टू द पावर e मॉड n है ना. तो ये m टू द पावर e मॉड n करने से क्या होगा, m क्या है मेरा 88 टू द पावर e, e क्या था 7, ये लास्ट वाले में हमने कैलकुलेट किया. e हमने हमारा 7 आया, d हमारा 23, ये हमने लिखा है यहाँ पे, और n है 187. तो उस हिसाब से निकाले तो ये हो गया मॉड 187. ठीक है, तो इसने जस्ट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या किया, ये 7 को डिवाइड कर दिया 4, 2 और 1 में. ठीक है, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7. तो इस तरीके से इसने just to minimize the calculation or just to speed up the calculation, we have divided that 88 power 7 into this 3 1 और mod 187. इंडिविजुअली सबको मॉड किया है, फिर टोटल मॉड 187, तो वो और जल्दी काम हो जाएगा, है ना. तो ये आप निकाल भी सकते हो, और ये यहाँ पे निकला हुआ है तो हम इसी को देखते हैं. 88 आया, यहाँ से आया 77 और यहाँ से आया 132 और मॉड 187. तो अब ये टोटल इसको मल्टीप्लाई करने पे 187 से डिवाइड करेंगे तो 11 मेरे पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर. दिस इज व्हाट 11 इज व्हाट, साइफर टेक्स्ट. This 11 will be transmitted through the transmission media to the receiver end, and there we will be using the private key of that receiver to decrypt the message. So for decryption of the ciphertext C, that is equal to 11, हम क्या करेंगे, m या c to the power क्या करेंगे, d करेंगे, and mod n. ये यहाँ देखो, ये देखो c to the power d mod n for decryption. ठीक है, तो c टू द पावर d बोलने से c क्या था हमारा 11, ये आया 11 और d क्या है 23,
mod 187। तो ये ऐसे भी यहाँ भी 23 को ऐसे डिवाइड कर दिया, देखो 1 2 4 8 एंड 8 में। तो इसका जो भी मॉड्यूलस निकाला 187 के साथ, तो ये आया टोटल मॉड अभी ये है, ये इतना आया मल्टीप्लाई करके, फिर मॉड 187 किए तो वापस से मुझे ओरिजिनल मैसेज मिल गया। ठीक है, वापस से मुझे ओरिजिनल मैसेज मिल गया। तो इन दिस वे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी वर्क्स। दिस इज द site where we can see the illustration of RSA encryption and decryption. Let's see. इसी में दिस इज द साइट। तो यहाँ पर ये जस्ट आप करके देख सकते हो, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है जनरेट RSA की ऑनलाइन, तो 1024 बिट, यू देयर इज मल्टीपल चॉइस, आप ज्यादा बिट का भी की रख सकते हो। एज वी हैव लर्न, जितने ज्यादा बिट का की का साइज होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उसको गेस करना फॉर अटैकर। ठीक है, सो हियर वी आर जनरेटिंग 1024 बिट की। तो मैंने किया है जनरेट RSA की, तो इसने एक पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों मैच्ड वन बना दिया। अब यूजिंग पब्लिक की आई एम गोइंग टू इनक्रिप्ट द मैसेज, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी कर लिया पब्लिक की को, एंड देन नीचे देखो यहाँ लिखा हुआ है RSA इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑनलाइन। सो यहाँ सॉरी, RSA इंक्रिप्शन एंटर प्लेन टेक्स्ट टू इनक्रिप्ट, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट मान लो लिखा हेलो वर्ल्ड। ये अब मुझे इसको इनक्रिप्ट करना है, तो मैंने पब्लिक की डाला। यूजिंग दिस पब्लिक की आई एम गोइंग टू इनक्रिप्ट दिस प्लेन टेक्स्ट, ये कर दिया मैंने इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट करने पे ये इनक्रिप्टेड मैसेज आया, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ इनक्रिप्टेड मैसेज को, इनक्रिप्टेड आउटपुट। नाउ दिस इनक्रिप्टेड आउटपुट विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर हियर। तो एट द रिसीवर एंड क्या होगा, ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो उसको मिला, what he will be doing, he will be using his own private key which is there। ये इस public की जो उसने सबसे शेयर की थी public की, उसका private key उसके पास है। इस private key को मैं यहाँ कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। So once we apply this private key to the encrypted or ciphered text, we should get the plain text again। तो decrypt करें, ये decrypt करने पे मुझे hello world और वो मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेम। ठीक है, सो लाइकवाइज we perform public key cryptography there। okay, this is just an illustration। okay, so one of the application of the public key cryptography जो हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम जब किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं तो पब्लिक की ऑफ द रिसीवर से करते हैं, so that receiver can decrypt it with its own or his और हर ओन प्राइवेट की। बट जब उसका एक एप्लीकेशन दैट इज डिजिटल सिग्नेचर की हम बात करें, बिकॉज यू आर साइनिंग, यू आर अ सेंडर एंड यू आर साइनिंग द डॉक्यूमेंट। जस्ट फॉर अ वाइल जस्ट इमेजिन, जो भी टेक्स्ट हम भेज रहे हैं उसको इनक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी के काम का नहीं। अगर किसी ने उसको पढ़ भी लिया तो वो किसी के काम का नहीं है, बट जो रिसीवर है उसको ये इंश्योर होना चाहिए कि ये डेटा आपने भेजा है। फॉर दैट यू नीड टू साइन दैट डॉक्यूमेंट, है ना। डिजिटल सिग्नेचर उसमें होना चाहिए। सो व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर मींस, you sign the message using your own private key। like here, if Alice, she's Alice और ये Bob है, ये दोनों Alice wants to send a document to the Bob। for that Alice needs to sign the message using his or using her private key। ठीक है, तो ये इनक्रिप्ट एक तरीके से इंक्रिप्शन है। आप ये सोचो कि अभी तो हम मैसेज को ही भेज रहे हैं, बट हम बाद में धीरे धीरे अलग बात भी करेंगे। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर में मैसेज जो हमको भेजना है उसके साथ में इसने क्या किया, अपना प्राइवेट की, अलाइस ने अपना प्राइवेट की से इस डॉक्यूमेंट को साइन किया, जिससे अपना डिजिटल सिग्नेचर, एक डिजिटल कोड बनाया विद द डॉक्यूमेंट, और जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एम प्राइम कह रहे हैं। अब जब वो मैसेज भेजेगी तो वो दो चीजें भेजेगी, सेल्फ मैसेज एंड द एम प्राइम, दैट इज अ डिजिटल सिग्नेचर, दिस इज द सिग्नेचर। ठीक है, वो साइन डॉक्यूमेंट भेज रही है।
So here we are not encrypting the message, but if we have to encrypt the message, there are several steps to perform it. बट अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि मैसेज को इनक्रिप्ट नहीं करना है, किसी के काम का नहीं है अगर कोई रीड भी कर लिया, बट हमको साइनिंग अथॉरिटी का साइन होना चाहिए सो दैट वी रिसीवर कैन एंश्योर दैट कि दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन सेंट बाय अलाइस ओनली. तो ये अलाइस ने अपने प्राइवेट की से इसको इनक्रिप्ट किया, या फिर हाँ यू कैन से इनक्रिप्ट किया एंड जनरेटेड अ एम प्राइम एंड सेंड message along with its signature to the Bob. ठीक है, तो once the Bob received it, first he needs to verify the signature using Alice public key, because Bob के पास तो Alice का प्राइवेट की नहीं है, उसके पास क्या है, पब्लिक की है ना, उसके पास क्या है, पब्लिक की है. तो वो क्या करेगा, जो एम प्राइम जो सिग्नेचर आया है, अप्लाई द public key of Alice on it and he will get the actual message. Yes, he can get the message, and now whatever message he has received from the Alice, he can match the both. हाँ, दोनों सेम है. That means the same document which is signed by the Alice, it is sent by the Alice only. ठीक है. So in this way, digital signature works विद द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. तो यही जो चीज आपको देख रहे हो, यही चीज हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, ब्लॉकचेन में भी यूज कर रहे हैं. ठीक, तो जहां पर हम इंक्रिप्शन की बात कर रहे थे, तो जब हम भेजते हैं डेटा इंक्रिप्ट करके, तो हम पब्लिक की से इंक्रिप्ट करते हैं और वहां प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट करता है अपने. बट जब हम डिजिटली साइन करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर की बात आए, तो हम मैसेज के साथ में डिजिटल सिग्नेचर भेजते हैं एंड दैट इज जनरेटेड यूजिंग द आवर ओन प्राइवेट की. ठीक है, और वहां पे आपके पब्लिक की जो कि ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है, उससे वो डिक्रिप्ट होता है और वेरीफाई होता है कि द यस इट इज साइंड बाय द अलाइस ओनली. ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर. तो ये कहता है कि रेदर देन सेंडिंग द होल मैसेज एंड द साइन, कैन बी सेंड द हैश वैल्यू, जो हम लोग मैसेज डाइजेस्ट निकाल रहे थे कल तक जो हम बात कर रहे थे, जिसमें कम स्टोरेज लगेगा, बैंडविड्थ कम लगेगा. तो अगर हम मैसेज का मैसेज डाइजेस्ट बना लें और उसके साथ सिग्नेचर भेजें, तो हमको कम स्पेस लगेगा. तो रिड्यूस द सिग्नेचर साइज. कैसे सिग्नेचर साइज रिड्यूस होगा, वी यूज द मैसेज डाइजेस्ट टू साइन इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल मैसेज. ठीक है, देन साइन द मैसेज विद हर प्राइवेट की. ये देखो, एच ऑफ एम हैश ऑफ द ओरिजिनल मैसेज, हैश वैल्यू हमने निकाली, हैश वैल्यू को इनक्रिप्ट किया या फिर यू कैन से साइन किया यूजिंग हर ओन प्राइवेट की एंड गेट द साइंड मैसेज. ठीक है, नाउ टू वेरीफाई द सिग्नेचर यूजिंग अलाइस पब्लिक की, ये साइन, यहाँ ये ई की जगह डी होना चाहिए. डिक्रिप्शन हो रहा है एक तरीके से, जिसमें साइंड जो मैसेज है विल बी signed message will be used and we apply the public key of the allies to get back the hash value. ठीक है, तो ये हम उस तरफ जा रहे हैं ब्लॉकचेन की तरफ, क्योंकि हम वहां पे हैश वैल्यू रखते हैं. तो देयर आल्सो यूजिंग द हैश वैल्यू ओनली वी कैन यूज द डिजिटल सिग्नेचर एज वेल. तो उससे क्या होगा, हमको कम स्पेस लगेगा, स्टोरेज कम लगेगा, बैंडविड्थ कम लगेगा. सो वी कैन यूज द मैसेज डाइजेस्ट टू साइन इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल मैसेज. So can we use digital signature in blockchain? It is used to validate the origin of a transaction. Yes, digital signature है तो हम कर सकते हैं. It prevents non-repudiation. जो भेजा है वो बोल नहीं सकता, cannot deny that उसने वो transaction नहीं किया था, है ना. किसी ने transaction किया और आप उसको verify कर रहे हो और वो बोल रहा, जब fraudulent पकड़ा गया था उसने बोला मैंने ये transaction किया ही नहीं. So it is not possible. You first need to verify, you first need to put your digital signature before sending it for verification. So Alice cannot deny her own transaction if we are using digital signature. No one else can claim Alice transaction as his or her own transaction. ये भी फायदा है ना, कि कोई और नहीं बोल सकता, Alice को तो चाहिए ही, उसका सब कुछ सही था, लेकिन किसी और ने क्लेम कर दिया, नहीं हो सकता, बिकॉज उसने डिजिटली साइन किया है. ठीक, then Bitcoin uses elliptic curve digital signature algorithm. Based on elliptic curve cryptography, supports good randomness in key generation. This is one of the algorithm
फॉर डूइंग बिटकॉइन में डिजिटल सिग्नेचर को यूज करने के लिए इसी डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम का इलिप्टिक कर्व एल्गोरिदम यूज हुआ है। तो बेस्ड ऑन दैट हम बिटकॉइन ब्लॉकचेन में हम रेंडमली की जनरेशन कर रहे हैं एंड विच सपोर्ट्स द डिजिटल सिग्नेचर एज वेल। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये है, जैसे कि अगर एलाइस को उसने कॉइन माइन किया, बिटकॉइन माइन किया 10, एलाइस जनरेट्स 10 कॉइन्स, है ना, देन साइन द ट्रांजेक्शन, साइन करेगी, डिजिटल सिग्नेचर डालेगी, 10 कॉइन्स उसने अर्न किए या फिर ट्रांजेक्शन किया या उसने जनरेट किया 10 कॉइन्स और फिर उसने अपना सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर डाला। सो दिस विल बी एडेड एज वन ऑफ द ब्लॉक। एज यू कैन सी हियर दिस इज h of 0, दिस इज अलाइस ट्रांजेक्शन। उसमें दिख रहा है कि 10 कॉइन्स उसने जनरेट किया और उसने डिजिटली साइन भी किया है। अब इसके बाद अलाइस क्या कर रही है, ट्राइंग टू ट्रांसफर दिस 5 कॉइन्स टू द बॉब। तो 5 कॉइन किसी और को दे रही है, तो ए सेंडिंग टू बॉब कितना 5 एंड अगेन साइनिंग अ डॉक्यूमेंट, ये ट्रांजेक्शन भी मैंने ही किया है। ठीक है, एंड बिकॉज इट इज अनदर ब्लॉक दिस h1 विल कंटेन द प्रीवियस हैश वैल्यू, तो इसलिए ये हमको कनेक्शन दिख रहा है बिकॉज इट इज अ ब्लॉकचेन। ठीक है, तो साइन द ट्रांजेक्शन, ये बी 5 कॉइन्स जो उसने ट्रांसफर किए यूजिंग अलाइज प्राइवेट की, अपने प्राइवेट की से उसको साइन कर रही है एंड पुट दैट इन द ब्लॉकचेन। तो इन दिस वे ब्लॉकचेन में हम हैश चेन और डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर कैसे, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, व्हाट इज देयर एल्गोरिदम, it's one of the application that is digital signature and how this digital signature is used in the blockchain that we have studied today. ठीक है, सेक्शन ए में कौन कौन प्रेजेंट है, रोल नंबर 2, हाँ 2 के बाद 5, Yes, ma'am. 12, Yes, ma'am. 25, Present, ma'am. 34, 45, Present, ma'am. और कोई बीच में अभी तक आया क्या, I'm 65, 21. 21, ओके 65 65 भी प्रेजेंट है, 21 भी प्रेजेंट है, 63, Ma'am. ठीक है याशी, देन 69, प्रेजेंट मैम 69 70, 70 एब्सेंट, ओके। और कोई प्रेजेंट है सेक्शन ए से, Ma'am, 66. 66, और कोई, ओके। सेक्शन बी, रोल नंबर 5, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 14 के बाद 18, 37, 34, 37 37 present, 34, 34 absent, 43, Ma'am, 33. ma'am. 33 present, मैं 40. Ma'am, 28. रंजीत का क्या है, I'm 39. 39, ओके। 43 present, Yes, ma'am. नेक्स्ट 50, 28. Present, ma'am. 28 किसका है, I'm Manas. 52. 52, 59, Yes, ma'am. 59. 60, Present. 63, Present, ma'am. 64, Present, ma'am.
और कोई प्रेजेंट है इसके अलावा? मैम हाँ 34 सेक्शन बी है क्या? मैम रोल नंबर 1 है। रोल नंबर 1 सेक्शन बी। यस मैम। और नवनीत तुम्हारा बी है 34। तुमको तो कॉल किया था मैंने, तुम बोल ही नहीं रहे थे कुछ। ठीक है, लगा दिया मैंने।